So we were discussing problems from arithmetic progression. See, we were discussing about the nth term of an AP. We know that first term plus n minus 1, the common difference will give you the nth term. So now, look at the question. Which term of the AP is given 3, 5, 315, 27, 39, etc. will be 132 more than its 15th term. So we don't know which term. Let nth term, we don't know. Nth term is 132 more than 54th term. So 54th term plus 132. So we don't know which term. So हमने ऐसे लिए कि let nth term is 132 more than the 54th term. तो जो given expression से हमें पता है first term is equal to 3, common difference is equal to 15 minus 3. 15 minus 3 is 12 because it is given as it is AP, so we don't need to worry. It is given, it is AP. So AP है क्या नहीं चेक करने का कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी उन्होंने बोला है AP है करके. So AN is equal to first term plus n minus 1 times common difference. We don't know which term is 132 more than 54th term. So हमने लिया okay nth term is 132 is more than 132 more than 54th term. So a plus n minus 1 d is equal to a54 मतलब first term के साथ 53 times common difference ऐड कर देना plus 132. So आप देखेंगे तो दोनों साइड में ये है, तो उसका कोई जरूरत नहीं, वो कैंसिल कर सकते हैं. आप 3 लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं, बट दोनों साइड में ये है, दोनों साइड से एक कम करेंगे तो चला जाएगा. सो बाकी आपको मिलेगा n माइनस 1 इंटू डी. डी इज हमें पता है 12. सो n माइनस 1 टू डी इज इक्वल टू 53 इंटू डी 12 plus 132. That is n minus 1 into 12 is equal to 53 into 12. आपको multiply करना. That you have to do 53 into 12, which is equal to 636. 636 plus 132. 636 plus 132 is equal to 768. 768. So उसका मतलब उसमें से हमें मिलेगा n minus 1 is equal to 768 को 12 से डिवाइड कर देना. 768 divided by 12, which is equal to 64. 64. So that implies n is equal to 64 plus 1. That means n is equal to 65. 5. हमें प्रूफ करके दिखाने का कोई जरूरत नहीं, हमें आंसर मिले. दैट मीन्स which term the answer is 65th term. 65th term is 132 more than 54th term. Understood? There is no need to verify. Yes, sir. डायरेक्ट निकाल दिया. आपको वेरीफाई करके देखना है तो खुद वेरीफाई करके दे सकते हैं.
आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, 54th टर्म भी देख सकते हैं, 65 टर्म भी निकाल सकते हैं, उसके बाद डिफरेंस देख लेना 132 है क्या है, तो आपका आंसर बराबर है। ठीक है, तो वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बताया भी नहीं हमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू APs have same common difference. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term, difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? कौन मार रहे यार डॉट ठक 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 ऐसे हैं? So two APs. Two APs, two arithmetic progression. Same common difference. दोनों का common difference same. So what they're saying, difference between their 100th term. That means ये 100 सेकेंड को मैंने B लिखूंगा, B 100 कितना है 100। सो AP में ऐसे लिखूंगा जैसे A1, A2, A3 etc. Second AP is B1, we don't know, B2, B3 etc. So difference between their 100th term, A 100 minus B 100 is 100. हमें निकालना है difference between their 1000th term, A 1000 minus B 1000 is what? That is the question. 1000 term का difference क्या है? Okay. अभी 100th term का डिफरेंस मतलब ये प्लस कितना डी 99 ठीक है, माइनस माइनस दूसरा का कितना है बी प्लस 99 इधर ऑल्सो डी, इधर ऑल्सो डी क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस। यस सर। ये कितना करके बोला है 100। तो उसका मतलब ये प्लस 99 डी माइनस इंटू बी माइनस बी माइनस इंटू प्लस माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। सो प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ये माइनस बी इज इक्वल टू 100। तो हमें एक रिजल्ट मिला। अभी हमें चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ये 1000 टाइम का डिफरेंस बी 1000 राइट। ये 1000 मतलब फर्स्ट टाइम के साथ 999 टाइम्स डी ऐड कर देना माइनस बी 1000 मतलब 1000 टाइम ऑफ सेकेंड। सो फर्स्ट टाइम इज बी, बी के साथ 999 डी ऐड कर देना डी। सो दिस इज ए प्लस A plus 999 D, then minus into B minus B minus into plus minus 999 D। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी आपको मिलेगा ये माइनस बी, बट हमें पता है माइनस बी क्या है 100।
है ना। a माइनस बी 100 a करके हमें ऑलरेडी मिला था, Yes, sir. माइनस बी, दैट मीन्स 1000 टाइम का भी डिफरेंस क्या है, 100. 100. सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दो एपी, उसका 100th टाइम का डिफरेंट 1000 दे करके बोला. सो वैसे है तो हमें पूछा था उसका 1000th टाइम का भी डिफरेंस क्या है, 1000 टाइम का भी डिफरेंस हमें क्या मिला, 100 मिला है. क्लियर, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we'll go to next question. बहुत इसी टॉपिक है ना, एक बार समझ में आए तो बाद में आराम से कर सकते हैं, बहुत इसी कर सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. हम सिलेबस हमारा एकदम बढ़िया चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा हर क्वेश्चन करके ही जा रहे हैं. आपको हर क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का हर क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 digits numbers are divisible by 7? क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है. ओके देखो, सो पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है. नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम नॉर्मली क्या सोचेंगे, पॉजिटिव नंबर ही सोचेंगे, बट नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो देयर, दैट कैन बी डिविजिबल बाय 7 आल्सो. सो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी होगा ना. Yes, sir. तो इसलिए पहले पॉजिटिव निकालेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट 3 digit नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7? 105. 105. 105. So ये तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए, नहीं है तो करना मुश्किल होगा. तो नहीं तो डिवाइड करके देख लेना. 105 इज, सो इट इज डिविजिबल बाय 7. सो एक बार मिला है तो नेक्स्ट मिल सकते हैं. नेक्स्ट कौन सा आएगा? अभी 7 112. 7 7 प्लस करने. देन 119, 119. ठीक है, 125. एक्सेट्रा. लास्ट आए कौन सा आएगा? 126. 3 digit नंबर. सो 3 digit में सबसे बड़ा नंबर है 999. 999 को 7 से डिवाइड होते हैं क्या? 9. सो कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक कर देना. 994. 9 को 7 से डिवाइड करके 1 7 is 7. Remainder 2, 29. 7 4s are 28. 8. 1 9. 7 2s are 14. Remainder 5. 5. That means Minus 999 से 5 कम कर देना. Yes, sir. So that is 994. 4. Understood? So these are the Positive numbers. positive 3 digit numbers. Positive 3 digit numbers which are divisible by 7. So ये क्या है? It is an AP. AP. It is an AP with first term 105, common difference 7. 7. So कितना टाइम है? ऐसे काउंट करके नहीं बैठ सकते.
तो हम बोलेंगे लेट an is equal to 994. So हम बोलेंगे 994 nth टर्म है करके बोलेंगे. सो अभी वो n का वैल्यू निकालेंगे, हमें मिलेगा कौन सा टर्म है करके. अंडरस्टूड? सो nth टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 times common difference is equal to 994. First term is 105 plus n minus 1 times common difference is 7 is equal to 994. So n minus 1 into 7 is equal to 994 minus 105. आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 994 minus 105 which is 889. So इसमें से आपको मिलेगा n minus 1 is equal to 889 divided by 7. So divide कर देना. So 120. 717. That means n is equal to 127 plus 1, which is equal to 128. 8. तो इसमें से आप ऐसे बोल सकते हैं, there are 128 positive numbers, 128 positive numbers, positive 3-digit numbers. Divisible by 7. Therefore, there are 128 negative 3-digit numbers divisible by 7. Correct? Hello? Yes, sir. Yes. Therefore, Yes, sir. Yes, sir. therefore total 128 plus 128. 256. 256. 256. 3-digit numbers. 256. 256 3-digit numbers are there which are divisible by 7. 7. So कभी हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव ही काउंट करते हैं. उन्होंने ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला कुछ बोला नहीं था. उन्होंने पूछ रहे थे कि हाउ मेनी 3-digit numbers are there which are divisible by 7. तो जितना पॉजिटिव नंबर होगा उतना नेगेटिव नंबर भी होगा. सो इसलिए हमने पहले पॉजिटिव नंबर कितना है करके निकाला. सो हमें पता है कि 105, 112, 119, एक्सेट्रा 994. दीज आर द 3-digit numbers which are divisible by 7. अभी वो कितना है करके निकालना है, तो 994 कौन सा टर्म है करके चाहिए था, इसलिए हमने ले लिया 994 इज nth टर्म. तो उसमें से हमको n का वैल्यू मिला 128. दैट मींस देयर आर 128 पॉजिटिव 3-digit numbers आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7. सो देयर आर नेगेटिव सेम नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आल्सो देयर. सिर्फ नंबर साइन नेगेटिव दे देना, उतना नेगेटिव नंबर्स भी है. सो टोटल देयर आर 256 3-digit numbers which are divisible by 7. 7. Same. Coming to the next तो question. बुक में 128 है. तो आंसर गलत होगा. बुक में उन्होंने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही पकड़ा. जो 128 पॉजिटिव नंबर है, वैसे 128 नेगेटिव नंबर भी है ना. Yes, sir. सो टोटल कितना आएगा? Yes, sir. 256 आएगा. 256. ठीक है. तो अभी देखो, अभी डे है, हम अभी आके हमें किसी आके हमें बोलेंगे अरे यार ये नाइट है करके बोलेंगे तो हम मानेंगे क्या? है? हम बोलेंगे ना तू पागल है करके. अभी डे चल रहे तुम आके बोल रहे नाइट है करके बोलेंगे ना, क्योंकि हमें पता है डे है करके. सो हियर देयर आर 128 पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, 128 नेगेटिव नंबर्स आर देयर. दोनों मिलके 256 3-digit numbers are there which are divisible by 7.
क्लियर? Yes, sir. या Yes, sir. सो उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला, 3 डिजिट नंबर्स पूछा, 3 डिजिट नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. नाउ देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. सो इधर क्लियरली बोला है 10 एंड 250 के बीच में, तो नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं. तो 10 के बीच में, 10 बिटवीन बोला, सो 10 एंड 250 काउंट नहीं करेंगे इसको, उनका बिटवीन बोला है. सो 10 के बाद कौन सा है फर्स्ट वन मल्टीपल ऑफ 12. 12. 12. 12 then 16 240. 60. 20 23. एक्सेट्रा. 24. 24. लास्ट कौन सा आएगा? 248. 248. 248. 248. क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है तो, नहीं तो 4 का मल्टीप्लाई तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट दोनों 0 होना चाहिए, नहीं है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए. सो 4 का मल्टीपल 48 है, सो इट इज 248. ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल रहे तो आप डिवाइड कर देना. 250 को 4 से डिवाइड कर देना. सो 6 4s are 24, रिमाइंडर 1, 224 रिमाइंडर 1, 10, 2 4s are 8, रिमाइंडर 2, दैट मीन्स रिमाइंडर 2 आएगा. सो 2 कम कर देना 250 से, दैट इज 248. सो दिस मेनी मल्टीपल्स आर देयर. Now we can say these are the multiples of 4 4 lie between lie between 10 and 250. अभी हमें निकालना है कितना है करके. So let an is equal to 248. So nth term मतलब a plus n minus 1 d is equal to 248. First term is 12. 12 plus n minus 1 to d is equal to 4, which is equal to 248. n minus 1 into 4 is equal to 248 minus 12, which is equal to 236. So n minus 1 is equal to 236 divided by 4, which is equal to 5 4s are 20, remainder 3, 36, 9 4s are. So n is equal to 59 plus 1, which is equal to 60. That implies there are 60 multiples. 60 multiples Multiples of 4 And lie between 10 and 25. 4 lies between 10 and 20. 250. Okay, clear? Yes, sir. अभी देखो, for what value of n, for what value of n, for what value of n, the nth term of 2 AP is given. So उसका nth term equal कब होगा दोनों का, मीन्स जैसे दोनों का सेकंड टाइम इक्वल है क्या, दोनों का थर्ड टाइम इक्वल है क्या. सो दोनों का सेकंड टाइम इक्वल है क्या, देखो फर्स्ट टाइम 63 इधर 3 इक्वल नहीं है, सेकंड टाइम फर्स्ट सेकंड टाइम इधर 65 इधर 10 इक्वल नहीं है, इधर 67 इधर 17 इक्वल नहीं है. सो ऐसे एक n है, उधर दोनों का nth टाइम, मे बी 10th टाइम, दोनों का 10th टाइम सेम होगा पता नहीं, मे बी दोनों का 15th टाइम सेम होगा, नहीं तो दोनों का 20th टाइम सेम होगा, हमें पता नहीं वो टाइम कौन सा है, हमें निकालना है. ठीक है, अंडरस्टूड. सो AP
वन AP1 है 63, 65, 67 एक्सेट्रा। सो फर्स्ट टाइम कितना है 63, सुन रहे? 63 सेकंड बी कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 2 65 से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देना विच इज इक्वल टू 2। नाउ AP2 second AP it is 3, 10, 17 etc. So first term is 3, second common difference is 10 minus 3 which is equal to 7. है ना? Now so we don't know, so we take let nth term nth terms are equal। हम ऐसे फर्स्ट का हम लिखेंगे ये n, सेकेंड को हम bn, ठीक है? फर्स्ट का ये लेटर यूज किया, सेकेंड का b लेटर यूज किया, ओके? सो फर्स्ट का nth टर्म मतलब फर्स्ट का फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। सेकेंड एपी का nth टर्म मतलब उसका फर्स्ट टर्म प्लस n इज सेम क्योंकि दोनों का nth टर्म है, n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ओके? सर डी मतलब सेम होगा, D1 लिखना होगा ना यहाँ पे। नहीं ये तो भी हमें पता है, वो दोनों का डी अलग अलग करके क्योंकि लेटर्स है, ओके? D1 D2 लिख दो, कोई इश्यू नहीं। इधर भी आप D1 D2, so इसका आप लाइए तो ये चेंज कर दो, इधर आप B दे देना, इसको बोलेंगे B दे दो फर्स्ट है, ओके? करेक्ट? तो Yes, sir. फर्स्ट एपी का Yes, फर्स्ट है sir. 63 प्लस n is same क्योंकि n-1 into d is equal to first term का 2 is equal to 2 second का 3 plus 3 n-1 into 7 7 okay, so that is 63 plus 2 into n 2n minus 1 into 2 minus 2 2 3 plus n into 7 7n minus 1 into 7 minus 7। 7 तो अभी इधर लिखेंगे 63 minus 2 63 minus 2 is 61 61 plus 2n is equal to 7n is there, 3 minus 7 is minus 4। अब ये काम करेंगे, ये 2n को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7n minus 2n। ये -4 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, +4 so plus 61 plus 4 that is 65 is equal to 5n 5n so that means n is equal to 13 65 upon 5 65 upon 5 5 that implies 13 n is equal to 13। उसका मतलब 13 their 13th term of these two APs are equal। वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई भी कर सकते, दोनों का 13th टर्म निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? क्लियर? yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमिन द एपी whose third term is 16 and
7th term exceeds the 5th term by 12. So ऐसे बोला है कि third term is 16. So A3 is equal to 16 given. So जो सबसे पहले हमें जो given terms लिखना है 7th term. So 7th term is A7. बोला है कि exceeds the 5th term by 12. That means 5th term से 12 ज्यादा. So A5 plus 12. Understood? So इसमें से आपको मिलेगा A plus 2D is equal to 16. 16. इसमें से आपको मिलेगा 7th term A plus 6D is equal to 5th term A plus 4D plus 12. 12. Understood? तो सेकंड इसमें से ये दोनों साइड में है, कैंसिल हो जाएगा. So 6D minus 4D is equal to 12. So 2D is equal to 12. So आपको D मिला 12 by 2 which is equal to 6. अभी इधर फिर से इसमें से आपको मिलेगा ये plus 2 into 6 is equal to 16. ये plus 12 is equal to 16. So A is equal to 16 minus 12. That means A is equal to 4. So A भी मिला आपको, D भी मिला. So therefore the AP is, first term क्या है 4, D is 6. So 4 plus 6 6 10. है ना? 10 10 plus 6 16. 16 plus 6 22. 10 22 plus 6 28. 28 28 plus 6 34. 34 plus 6 40. 40 etc. ऐसे जाएगा. वेरीफाई करना है तो देखो थर्ड टाइम क्या है, थर्ड टाइम 16 है ना, बराबर है. थर्ड टाइम 16 बराबर है ना, थर्ड टाइम 16. Yes, sir. yes sir देखो सेवेंथ टाइम कितना है 40 है ना. 40 सो फिफ्थ Yes, टाइम sir. कितना था 28. 28 28. 12 ज्यादा 40 है ना. yes Yes, sir. Yes. Yes. तो करेक्ट मिला. अंडरस्टूड. Yes, sir. सो वेरीफाई भी कर दिया. अब हम ऐसे खुद वेरीफाई कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है क्या नहीं करके. राइट. एंड टुमारो देयर इज नो क्लास क्योंकि इंडिपेंडेंस डे छुट्टी है. ठीक है. Yes, sir. Sure, sir. एंड Yes. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. Yes, sir. ठीक से Okay, पढ़ाई कर sir. देना. ओके. एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस Okay, डे sir. टू ऑल ऑफ यू. एंड Thank you, भेज sir. दो. Thank you, sir. Thank you, sir. Same to you, sir. 10th डे वाला बराबर भेजते हैं. 10th डे वाला बिल्कुल भेज दे. जल्दी अटेंडेंस भेज देना. ओके. yes sir Yes, sir. ओके. बाय बाय. Yes, sir. Okay, bye.